Recording in progress. So the next approach is CAPM approach, okay, capital asset pricing model approach. Now CAPM was first developed in 1969 by William F. Sharpe. Okay. Now it is also known as the expected rate of return. That means if you are investing in any stock or any portfolio, what is the expected rate of return you can get? Now here in this model, we take only one risk into account, that is the market risk. Okay. सिर्फ हम एक रिस्क लेके ही काम करते हैं जिसका नाम है क्या? मार्केट रिस्क. अब मार्केट रिस्क को, मार्केट का जो रिस्क है that we define by a term called beta. Okay, that we define by the term called beta. Beta is also known as a measure of systematic risk. क्या बताया मैंने? Beta is also known as a measure of systematic risk. Now, if you look at the formula, sometimes it is known as the estimated rate of return. So it is denoted by ER. Okay. Sometimes it is also known as the cost of equity capital. That is why instead of ER, we also replace it by KE. Now on the right hand side, it tells that how much excess return, I repeat, how much excess return the stock or that portfolio is earning beyond the risk-free rate. क्या बताया मैंने कि कितना ज़्यादा या excess return क्या वो सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो अर्न कर रहा है एक्सेस द रिस्क-फ्री रिटर्न. यही कंप्यूट करने के लिए क्या CAPM मॉडल हम यूज करते हैं. तो अगेन थोड़ा सा अगर उलट पुलट हम करें इस इक्वेशन को तो हम बीटा का भी एक फॉर्मूला देख सकते हैं. क्या फॉर्मूला देख सकते हैं? दैट इज KE minus RF equals to beta into RM minus RF. And again, beta can again be defined as that beta is equals to KE minus RF divided by RM minus RF. So it means the expected return minus the risk-free return, again the excess return, divided by the excess return generated from the market, which we term it as risk premium. तो देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है RM minus RF. So RM minus RF is known as risk premium. Correct? That means what is the excess return the market is generating over the risk-free return. So for example, if NSE Sensex इंडेक्स के 2022 का जो बिगिनिंग था, बिगिनिंग में एक पर्टिकुलर आपने स्टॉक इंडेक्स का वैल्यू तो होगा एंड से 31 दिसंबर 2022 तो BSE स्टॉक एक्सचेंज का BSE जो सेंसेक्स है उसका एक रीडिंग होगा. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट ईयरली रिटर्न, दैट इज व्हाट ईयरली मार्केट रिटर्न, दैट इज व्हाट वी विल से. Yes or no? And similarly, जो रिस्क फ्री रेट है, तो रिस्क फ्री रेट क्या? That is the rate of an FD or the rate of a treasury bill. तो वो एक फिक्स परसेंटेज में होता है थ्रू आउट द ईयर. So for example, now the FD rates has increased a bit by 0.5%. SBI has increased, so it has come to around 6%. So 6% will be my risk free return. Now what will be the risk premium then? That if an investor invests in the market, so 25 minus 6%, say 25% is generated by BSE Sensex in 1 year. So 25% minus 6% or 19% extra return the investor can expect if he invests in the market. That is what the definition of risk premium means. Now, when you multiply this risk premium by a factor called beta, it means that how much systematic risk if an investor takes an N amount of systematic risk, then he will obtain this amount of return. For example, if say for example Dharna invest in a stock like Reliance Power,
Now, if she invests and if Reliance Power has a beta of say 2, so that means Dharna has a risk capacity of 2 times that of the market. Correct. If she is investing in Reliance Power, that means she is having twice the risk capacity or twice the capacity of bearing systematic risk than that of market. So that means if she has double the risk, that means double the reward also. So risk premium कितना था? 19% था. और अगर बीटा 2 हो है तो that means क्या? 2 into 19, that is 38% return Dharna can bear. Similarly, the otherwise is also true कि अगर क्या बीटा नीचे चला जाता है तो क्या धरना को डबल द लॉस भी होगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. उसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? अब आई थिंक यही मेरा लास्ट स्लाइड था. अब आते हैं, मेरा पूरा नोट्स बना हुआ है. ना 5 मिनट्स नहीं, 10:47 बाई माई वॉच हुआ है. चलो करो जरा इलस्ट्रेशन 1. दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Generally, when beta is value is greater than 1, it is known as an aggressive portfolio or an aggressive stock. हाँ, or if beta's value is less than 1, then it means a defensive stock or a defensive portfolio. ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ आज का होमवर्क जो आपको रहेगा वो ये है कि आपको ये 3 चीज पढ़ के आना है. पहले नोट कर लो. ठीक है? ये जो 3-4 चीज मैंने लिखा है ना, 3 चीज, ये 3 चीज आप लोगों को एक नोट्स बना के ले आना है. और अगर हो सके तो यू कैन डाउनलोड दीज रिसर्च पेपर्स फ्रॉम गूगल स्कॉलर एज वेल. इसे पढ़ के आना है आपको. ये सबसे लेटेस्ट है मार्केट में. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हालांकि पुराना है, ये ऑलमोस्ट 1970s में रॉस ने इन्वेंट किया था. बाकी फार्मा एंड फ्रेंच ने फिर 1990s पे ऑलमोस्ट इन्वेंट किया था ये 3 फैक्टर मॉडल. अभी 5 फैक्टर और अभी और एक लेटेस्ट पेपर में पढ़ रहा था जिसमें 6 फैक्टर भी लॉन्च हो गया है. वो अभी 2019 में ही लॉन्च हुआ है, 18 या 19, बिल्कुल लेटेस्ट. तो यही चीज आपको मार्केट में जब इंटरव्यू होगा ना तो तब आपको बोलना पड़ेगा कि विच काइंड ऑफ बीटा यू आर टॉकिंग अबाउट. तब जब आप बोलोगे ना कि एक तो मार्केट बीटा है और भी इस तरीके का बीटा है, आप कौन से बीटा को बोलो, तो ऑलरेडी इंप्रेशन वहीं पे पड़ जाएगा कि भाई इतना अपडेटेड नॉलेज उनके पास भी नहीं रहेगा, इंडस्ट्री के पास भी नहीं रहेगा. ठीक है? तो वहीं पे फर्क हो जाता है. जब भी आप इक्विटी रिसर्च फर्म में जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन ही आपसे यही पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क. आपसे पहला क्वेश्चन होगा इंटरव्यू का. सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. तो टाइप्स ऑफ रिस्क में सबसे पहले आप इन्हीं से शुरू कर सकते हो कि सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक. तो सिस्टमेटिक में बीटा है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। फिर जब अल्फा आप बोलोगे, बीटा जब शुरू करोगे तो बीटा में आप घुमा सकते हो, इतने तरीके का बीटा हो सकता है, लीवर्ड अनलीवर्ड, आप किस तरीके का बीटा का बात बोलोगे। तो जब एक के बाद और आप ही के क्वेश्चन से वो पूछता जाएगा, ठीक है। तो जब आप n नंबर ऑफ सीरीज जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो तब वो ऑटोमेटिक बोलेगा कि भाई आप निगोशिएशन की बारी है, बताओ क्या होगा। और फाइनेंस में मेंटली ये रखो कि 5 से 6 राउंड आपका इंटरव्यू होगा कोई अच्छी जगह, 5 to 6 राउंड्स। पहला तो होगा सब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद केस बेसिस होगा कि आपको एक सिनेरियो दे देगा ऑन द स्पॉट एंड बोलेगा कि इसका इफेक्ट क्या आ सकता है बैलेंस शीट में, पीएल में और इसमें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। तो आपको वहां पे ऑन द स्पॉट जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर मान लो आजकल ऐसा भी हो गया है कि मशीन लर्निंग के थ्रू भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ कंपनीज हैं एंड उनके प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, तो उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे। तो आई थिंक आपको सुशील सर ने फाइनेंशियल एनालिटिक्स पढ़ाया था, तो ये जो वर्कशॉप जो लिखा हुआ है ऑन बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस को कुछ नहीं क्या होगा, चलो ठीक है। एनीवेज चलो, ये अच्छे बच्चों की तरह ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके आप घर में जाकर पढ़ो, या यहीं पे अभी कॉलेज आए हो तो कॉलेज का लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। क्योंकि थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे पेपर अभी इंक्लूड करने वाला हूँ मैं फाइनेंस में, पेपर्स इंक्लूड करने वाला हूँ मैं फाइनेंस में। एक पेपर तो होगा मशीन लर्निंग इन फाइनेंस, और एक मार्जिन्स एंड एक्विजिशंस। देखो डरने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, हर फील्ड में ही तो कंपटीशन है, हर फील्ड में ही तो कंपटीशन है, कहाँ पे भागेंगे। यू कैन नॉट रन फ्रॉम एनीथिंग। देखते हैं, 2 कोर्स तो लॉन्च करूंगा ही करूंगा, एक M&A और एक है मशीन लर्निंग इन फाइनेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। वो तो लिमिटेड ही है ना, 3 कोर्स 3 ही हो सकते हैं। देखो वो मुझे पता नहीं, या तो क्रेडिट रिशफलिंग हो या कुछ भी हो, अगर लेटेस्ट पेपर पढ़ा ही नहीं जाए नॉन क्रेडिट कोर्सेज में रख देंगे, जिसे 100 मार्क्स ही रखेंगे ना, सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई नहीं करेगा तो उसका लॉस है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफर ही कर सकते हैं, बाकी चीजें लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। फिर जैसे क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, ये सारे पेपर्स मार्केट में बहुत डिमांड है, तो लेट्स सी कितना कर पाता हूँ। और लाइब्रेरी में जाके प्लीज थोड़ा सा रिसर्च करो इन सब चीजों को लेके,